Okay, so this is in text 1, question number 10b. Dilute hydrochloric acid is stronger than highly concentrated acetic acid. Very good question. So this question is about strengths of acid. Okay. So for that you need to have your concept clear regarding what is a strong acid and what is a weak acid. Strong acid and weak acid. Aryan, what do you know about these two things? Tell me one thing, only one. Yes, sir. So I think that in strong acids the concentration is high of Of acids, one second, one whereas second. in weak Concentration of what? of acid like HCl, No, and the concentration of water is low. no, no. Wait. In strong acid, what you are telling me is dilute and concentrated. What I am asking is strong and weak. In strong acid, the concentration of H3O plus ions is high. And this H3O plus ion, hydronium ion, is responsible for the acidic character of any acid. Okay, so if more hydronium ions are made per unit volume of an acid, that means that is a strong acid. Okay, so how these hydronium ions are made? So it is made by the dissociation of acid when it is dissolved in water. Okay, so let me talk about HCl. So what happens to HCl when it is put in water? First, it dissociates into H plus and Cl minus ions. Okay, so this H3O, I'm sorry, H2O, we already know that H2O, water, has it's a polar covalent compound and it has two free electrons which it can share with any atom in need or any ion in need. So it shares those two free electrons, that available pair, with H plus. This H plus, which is furnished by HCl, which is made by dissociation of HCl. So it gets added to H2O and we get H3O plus. Okay. Now what happens is, in HCl, which is a strong acid, the degree of dissociation is very high. So many hydrogen ions are formed and they all get combined with water to form hydronium ions. So there are many hydronium ions. Okay, too many hydronium ions. That means the concentration of hydronium ions is very, very high, and that's why it is strong. Because of these hydronium ions, acids show acidic character, acidic behavior. ठीक है, so ये एक चीज़ याद रखनी है. What about weak acids? Now when I'm talking about weak acids, uh, they are also acids, but the only thing is they are having less degree of dissociation. Less degree of dissociation results into less concentration. Concentration of hydronium ions. Less concentration of hydronium ions results in less property, less exhibition of the properties of acids. So weak acids, weak character. Okay, so this is the difference. Never confuse strength of an acid with the amount of water. So the question said that even if you have, uh, like you can say, the most dilute hydrochloric acid, it will still be stronger than uh, highly concentrated acetic acid. So the reason you will write is, since
dilute HCl has more concentration of hydronium ions. Since dilute HCl has more concentration of hydronium ions than concentrated acetic acid, hence it is more stronger. Dilute HCl is more stronger. ठीक है, क्लियर हो गया ये कॉन्सेप्ट? स्ट्रेंथ, Sir, my answer is little different from you. रीड. Strength of an acid is the measure of concentration of hydronium ions it produces in its aqueous solution. So dilute HCl produces a higher concentration of hydronium ions compared to that of acetic acid. वही तो लिखा है मैंने, वही चीज़ लिखी है. तुमने भी सही लिखा है, बिल्कुल सही लिखा है. अपना दोनों का लिखने का तरीका अलग है, मीनिंग एक ही है, बात एक ही बोल रहे हैं हम दोनों. सो इट इज़ एब्सोल्युटली सेम, देयर इज़ नो डिफरेंस. ठीक है, चलो. तो ये था 10B में. किसी को डाउट था? ये भी क्लियर हो गया. और किसी को कोई डाउट है, कुछ पूछना है? एक्चुअली मैं उसी के ऊपर आ रहा था. एक क्वेश्चन मुझे जो समझ में आ रहा था, बट या इट इज़ अ लिटिल बिट डिफरेंट. मेरा क्वेश्चन ये था, राइट द आयोनाइजेशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड शोइंग द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयंस. मुझे सिर्फ पूछना ये है कि सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला है H2SO4. पहला क्वेश्चन ये है मेरा कि इसको कितने स्टेप्स लगते हैं आयोनाइज होने के लिए. हाउ मेनी स्टेप्स, इन हाउ मेनी स्टेप्स डज इट आयोनाइज कंप्लीटली? Anyone can answer? Yes, 2, right? 2. ये तुम्हें कैसे पता चला कि 2 स्टेप्स में आयोनाइज करता है? Yes, It is a it has. dibasic. Very good, very nice, excellent. It is a dibasic acid. It has 2 हाइड्रोजन्स. 2 हाइड्रोजन्स, डाइबेसिक एसिड, मतलब वो 2 स्टेप में आयोनाइज करेगा. तो पर मॉलिक्यूल कितने हाइड्रोनियम आयन बनाता है? पर मॉलिक्यूल 2. ठीक है, ये भी एक याद रखने वाली बात है कि द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स एन एसिड हैज दोज मेनी हाइड्रोनियम आयंस इट मेक्स पर मॉलिक्यूल. ठीक है. अच्छा, एक और क्वेश्चन, छोटा सा क्वेश्चन है, आई थिंक सबको आंसर तो पता ही होगा. वाटर इज नेवर एडेड टू एसिड इन ऑर्डर टू डाइल्यूट इट. व्हाई? यस आर्यन. Sir, So this is because when water is added to concentrated solution, it might heat up and splash out, which might burn our skin. Very So to good. prevent it, we need to wear gloves, And and also, we need to add acid in water, not water in acid. and that too very slowly through the edge of the container, drop by drop, or you can say very very little quantity. ठीक है, तो कभी भी वाटर को एसिड में नहीं ऐड करना है उसको डाइल्यूट करने के लिए. वी ऐड एसिड टू वाटर एंड दैट टू इन वेरी स्मॉल क्वांटिटीज by the edge of the container, so that it gets diluted slowly. ठीक है, बिकॉज इट्स अ वेरी एक्सोथर्मिक रिएक्शन जब वाटर और एसिड मिक्स होता है, और सडन लार्ज क्वांटिटीज ऑफ ये दोनों चीज़ें अगर एक साथ मिक्स हो जाती है तो इट प्रोड्यूसेस अ लॉट ऑफ हीट, जिससे वाटर और एसिड का जो मिक्सचर है ना वो तुरंत इवेपरेट हो जाएगा. क्योंकि वाटर का जो तुम्हारा बॉइलिंग पॉइंट है वो 100 डिग्री सेल्सियस, तुरंत इवेपरेट होके वो स्प्लैश होगा, बिकॉज स्टीम डज नॉट स्टे इन वन स्पेस, यू नो, it just comes out. So it carries the molecules of or droplets of acids also along with it, which can actually burn your skin. So you have to be very careful while diluting the acids. ठीक है. Okay. अच्छा अच्छा, चलो, मैंने कोई एक क्वेश्चन पूछा नहीं है, इसमें देखा भी नहीं है मैंने. मेरे को एक बताओ,
एग्जाम्पल शायद तुम्हें पता होना चाहिए इनफैक्ट, जहाँ पे एक एसिड helps in the release of carbon dioxide gas when it mixes with some compound. When does, Calcium carbonate. very good. So when acids react with metallic carbonates or bicarbonates, they release carbon dioxide. When acids react with metallic carbonates or bicarbonates, they release carbon dioxide. And you all have done in your life, at some or the other point, you have all done this experiment in your home, in your kitchen, or on your dining table. तुमने सबने ये एक्सपेरिमेंट किया है, बताओ, किसी को पता है? व्हाट नियति? There's a volcano. नो, आई हैव नॉट डन वॉल्कन, not the volcano. It is something you had, uh, you have had for a drink when your stomach was upset. कोक एंड मेंटोस नहीं, आंचल प्लीज, कोक एंड मेंटोस कौन करता है यार ये सब? यूट्यूबर्स करते हैं पैसा कमाने के लिए कोक एंड मेंटोस। सर नींबू पानी। नहीं भाई, नींबू पानी में कहाँ पे तुम कार्बन डाइऑक्साइड किधर से लाएगा? Sir, Eno. वेरी गुड, इनो। Vinegar. इनो 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 बेटा, विनेगर, अभी शांत बेटा शांत। इनो, इनो, इनो पिया है कभी? पेट खराब हुआ है एसिडिटी में? नहीं, अच्छा पेट खराब ही नहीं हुआ कभी, वाह, इनो नहीं पिया लाइफ में, इसको कोई पेट खराब मेडल हुआ दो। लेकिन इनो कभी नहीं। क्यों? पेट खराब होगा लेकिन मैं इनो नहीं पीऊंगा? अरे बहुत टेस्टी होता है यार, अच्छा होता है वो, बहुत मज़ेदार होता है। बचपन में तो मेरा पेट खराब नहीं भी होता था तो भी मैं इनो पीता था, क्योंकि मुझे मज़ा आता था, फिज़ देख के अच्छा लगता था। सो ज़बरदस्ती मैं पेट खराब करवाता था मेरा, क्योंकि मुझे इनो मिलने वाला है। सो व्हाट इज़ इनो बेसिकली? इनो में देर इज़ सोडियम बाइकार्बोनेट, NaHCO3, ठीक है, उसके साथ ग्रैन्यूल्स होते हैं छोटे छोटे सिट्रिक एसिड के। फ्लेवर आता है ना इनो में, लेमन फ्लेवर और ऑरेंज फ्लेवर, तुम्हें पता होगा, सिट्रस फ्लेवर। तो फ्लेवर मतलब उसके अंदर सिट्रिक एसिड के छोटे छोटे ग्रैन्यूल्स होते थे सॉलिड फॉर्म में, ड्राइड। हमेशा याद रखना, इनो का पाउडर बिल्कुल ड्राई होता है, एनहाइड्रस, इट कैन नॉट हैव एनी वाटर मॉलिक्यूल। जैसे ही वाटर गया खराब हो जाएगा। क्यों होगा ऐसा मैं बताता हूँ, बिकॉज इनो, मैंने जैसे बताया, इट हैज़ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट प्लस एन एसिड, ड्राइड एसिड विच इज़ एडिबल, जो हम खा सकते हैं, जैसे सिट्रिक एसिड, ठीक है, उसका मिक्सचर होता है पाउडर का, ड्राइड। उसको हम लोग पहले एक स्पून से डालते हैं ग्लास में, उसके अंदर फिर हम वाटर डालते हैं। जैसे ही वाटर डालते हैं क्या होता है, ये तुम्हारा जो सिट्रिक एसिड है वो डिज़ोल्व हो जाता है पानी में, और जैसे ही पानी में डिज़ोल्व हुआ, हाइड्रोनियम आयंस बने, एसिडिक कैरेक्टर आया, और उसने वो सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट किया और कार्बन डाइऑक्साइड तुरंत रिलीज़ करता है वो। सो इट रिलीजेज अ लॉट ऑफ फिज, एफरवेसेंस, ठीक है, और ये हम तुरंत इंजेस्ट कर लेते हैं, तो हमारा एसिडिटी रिलीज हो जाता है बिकॉज ऑफ दैट, बिकॉज ऑफ एक तो जो बेस होता है अंदर, दैट हेल्प्स इन रिड्यूसिंग द एसिड लेवल्स, एंड दूसरा जो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, दैट रिलीजेस द प्रेशर क्रिएटेड बाय एनी गैस, सो बर्फ आके यू फील बेटर. So that is one thing which you all have tried. If you ask me, sir, how much these reactions are important, reaction with chlorides or nitrates, let me tell you, they are very important, because ये जितने भी chemical properties तुम लोगों को यहाँ पे दिख रहे हैं, they can ask or frame any questions based on those. So you should at least remember the pattern of the equations which are given here. अच्छा, किसी ने इसके बारे में पढ़ा था क्या इसमें, एक्वा रीजिया? एनीवन नोज अबाउट एक्वा रीजिया?
एक्वारीजिया नहीं, एक्वारीजिया के बारे में नहीं पढ़ा अभी तक. Okay, let me tell you maybe. I don't know why it is not there. Strange. Okay, so aqua regia, please note it down. Aqua regia is the mixture of HCl and HNO3 in the ratio, I believe, 1:3. We can actually look it up because I feel that this ratio might be a little bit different. Aqua regia 1:3, yeah. Nitric acid and hydrochloric acid. So nitric acid is in 1 ratio and hydrochloric is in 3 ratio, 3:1 भी बोल सकता है. ठीक है. Aqua regia, क्या होता है aqua regia? Aqua regia literally translates into royal water. Royal water. What does it do? Aqua regia क्या होता है? ये इंडस्ट्रीज़ में यूज़ करते हैं इस मिक्सचर को. They say that it can dissolve gold also. Can dissolve gold or platinum. जनरली गोल्ड और ये नोबल मेटल्स जो हैं वो किसी के साथ रिएक्ट नहीं करते. दे डू नॉट रिएक्ट विथ एनी एसिड्स. They are unreactive. That's why they are noble metals. But they can get dissolved in this aqua regia. ठीक है. So this is used in some very rare industrial, you can say, application where gold and platinum and such noble metals are to be extracted or to be removed from your particular compound. तो aqua regia वहाँ पे यूज़ करता है. ठीक है. That was one more thing I wanted to tell. Okay, anything in base, any problem in base, please ask me. पीएच भी पढ़ा है तुमने. मेरे पास इंटेक्स्ट है यहाँ पे, तुम अपना चेक कर लो. इसमें 18 क्वेश्चंस है. तुम्हारे एक्सरसाइज 3A में कितने क्वेश्चंस है? Okay, so are they the similar questions, like, or they are something different? Or? सर मेरी बुक में एक्सरसाइज 3 में 19 क्वेश्चन ही है. Okay, cool. क्या वो सेम है जैसे तुम्हें अभी दिख रहा है स्क्रीन पे, और दे आर डिफरेंट? Sir, some are same and some are different. Okay, no problem. So you have doubt in any questions you want Sir, to I have ask? doubt in 20th question. Okay, so I do not have 20th question. Can you read it out for me? Yes, sir. Yeah. M is an element in the form of powder. Okay, एक M मिनट burns. एक मिनट आराम से. ओके, मैं यहाँ लिख लेता हूँ, तू जो जो बोल रहा है. ठीक है. M एक पाउडर है. ठीक है. फिर क्या बोला है? M burns in oxygen and the product obtained is soluble water. अच्छा, द प्रोडक्ट ऑब्टेन इज सल्यूबल इन वाटर. Yes. ओके, प्रोडक्ट सल्यूबल इन वाटर. ओके. The solution is tested with litmus. ओके, एक Right. मिनट. सॉल्यूशन टेस्टेड विथ लिटमस. Write down only the word which will correctly complete each of the following sentences. ओके, बस मतलब तुम्हें वो लोगों ने इतना इन्फॉर्मेशन दे दिया है कि M एक पाउडर है. पाउडर बोला है ना M, Yes, sir. और M ऑक्सीजन में बर्न होता है.
और जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस करता है वो दैट इज सोल्यूबल इन वाटर, और ये सोल्यूशन हम लोग लिटमस में टेस्ट करते हैं। तो और कुछ नहीं बोला इसके आगे? नहीं सर। ठीक है। सो टेल मी व्हाट आर द फिल इन द ब्लैंक्स और व्हाटएवर दे हैव गिवन। If M is a metal, then litmus will turn into dash. ओके, देखो सुनो मेरी बात, सुनो मेरी बात। अगर M एक मेटालिक सब्सटेंस है और उसको अगर हम ऑक्सीजन में बर्न करते हैं तो व्हाट विल इट प्रोड्यूस? ऋषि, अगर किसी मेटल को ऑक्सीजन में मैंने बर्न किया तो वो क्या बनाएगा? Oxide. वेरी गुड, मेटालिक ऑक्साइड। समझ में आया? मेटालिक ऑक्साइड। ओके, मेटालिक ऑक्साइड सल्यूबल होता है क्या पानी में? हाँ, कभी कभी हो जाता है, कभी कभी कोई कोई मेटालिक ऑक्साइड्स पानी में सल्यूबल होते हैं। ये जो सोल्यूशन है ना, उसको मैंने लिटमस में टेस्ट किया। अब याद रखना एक बात कि कोई भी मेटालिक ऑक्साइड को जब मैं वाटर में सल्यूबल करूँगा तो इट विल गिव मी मेटालिक हाइड्रोक्साइड, मेटालिक हाइड्रोक्साइड। ठीक है, अब तुम ही बताओ ऋषि कि मेटालिक हाइड्रोक्साइड का नेचर क्या होगा, एसिडिक या बेसिक? Basic. बेसिक ऑलवेज। देखो, मेटल हाइड्रोक्साइड हमेशा बेसिक होते हैं, मेटल ऑक्साइड हमेशा बेसिक होते हैं, ऑलवेज। ठीक है, तो अगर उसको मैंने लिटमस में टेस्ट किया तो लिटमस में क्या चेंज आएगा? क्योंकि वो बेसिक सोल्यूशन है, रेड लिटमस ब्लू बन जाएगा, राइट? रेड लिटमस विल टर्न इनटू ब्लू। ब्लू लिटमस में क्या चेंज आएगा? कुछ नहीं, ब्लू लिटमस विल रिमेन ब्लू, बट रेड विल टर्न इनटू ब्लू। So I think that is your first answer. Can you read the first question again? If M is a metal, then litmus will turn into dash. हाँ, तो तुम litmus will turn into blue, from red to blue, ऐसा लिख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन उसमें ही। If M is a non-metal, then litmus will turn into dash. रेड, बिकॉज नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स को जैसे ही पानी में मैं डालूंगा वो एसिड बना देगा, सो इट विल टर्न फ्रॉम ब्लू टू रेड। यस, नेक्स्ट। If M is a reactive metal, then a dash will be evolved when M reacts with dilute sulfuric acid. हाइड्रोजन, आई थिंक हाइड्रोजन, बिकॉज हमने जो सारे रिएक्शंस देखे थे उसमें जो हाईली रिएक्टिव मेटल्स थे उनको कैसे कभी भी हम लोग एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं, बिकॉज दे आर वेरी, द रिएक्शन इज वेरी एक्सप्लोसिव। ठीक है, सो व्हाट वी, हम लोग ने जो इक्वेशंस लिखे थे, व्हाट वी अंडरस्टैंड फ्रॉम देम इज दैट वेन एवर हाईली रिएक्टिव मेटल्स दे आर रिएक्टेड विद एसिड्स, दे इवॉल्व, दे गिव आउट हाइड्रोजन गैस। सो आई थिंक दैट इज द आंसर। यस, नेक्स्ट। If M is a metal, it will form dash oxide, which will form dash solution with water. It will form basic oxide, which will form basic solution with water. If M is a non-metal, it will not conduct electricity in the form of dash. If M is a non-metal, they are asking. Yes, sir. It will not conduct electricity in the form of non-metallic oxide। इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता जब वो एक्वस सोल्यूशन के फॉर्म में नहीं होता। तो कौन से फॉर्म में नहीं? व्हेन इट इज़ नॉट इन द फॉर्म ऑफ एक्वस सोल्यूशन। सही है ना? व्हेन इट इज़ नॉट इन द फॉर्म ऑफ द एयर या व्हेन इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ द एयर? It is in the form of. अच्छा, इन द फॉर्म ऑफ द एयर। व्हेन इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड और in the form of, can you read the sentence क्योंकि I lost the track. If M is a non-metal, it will not conduct electricity in the form of. I don't know. Anyone else has written? Please tell me. नहीं ना, अजीब है।
Huh? Graphite? No, no. No, they're not asking you the example. They are asking you the state, I think. The state of the substance. In the form of, what is the form? Aqueous form, solid form. What is the state they are asking? And that's a little So weird because, yeah, sir, I think the question says that it will not conduct electricity in the form of. it will So not I think, conduct electricity in the form of. yeah. हाँ हाँ So वही तो है. इट विल नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन द फॉर्म ऑफ, अगर नॉन मेटल है तो इन द फॉर्म ऑफ गैशियस स्टेट मे बी. आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट. जस्ट सेंड मी द पिक्चर ऑफ दैट फोटो, आई विल थिंक अबाउट इट. ठीक है, बाद में आराम से भेजो, कोई टेंशन नहीं, जल्दी नहीं. हाँ, एनी अदर क्वेश्चन, एनी अदर फ्रॉम योर बुक which are not over here, then I will ask some questions from here, some discussions. तुम लोग पूछो, उससे पहले मुझे एक आंसर, एक क्वेश्चन मिला है. क्वेश्चन नंबर 6 जो मेरी बुक में है. HCl, HNO3, C2H5OH, C6H12O6 all contain hydrogen atoms, but only HCl and HNO3 show acidic character. Why? Who will answer this? Come on. Only 2 people. Wait. Let me see who else is ready with it. Very good. 4 people. Very nice. Okay, Rishi also. Very good. Marine. Okay, I would like Prince to try this first. Yes, so it is because like HCl and HNO3 are get ionized in aqueous solution. Good. They get ionized in aqueous solution. They form hydronium ions, and that's why Yes. they show acidic character. So Yes. you can say ionize or they dissociate. Which is the right word? Ionization or dissociation over here? Because ions तो पहले से present होते हैं, वो सिर्फ dissociate हो जाते हैं. So don't use the Yes. word ionization, use the word dissociation. I think that's more accurate. So HCl and HNO3 being polar covalent compound, they get dissociated in aqueous solutions, and they furnish hydronium ions, which are responsible for the acidic character. But C2H5OH, that is I think ethanol, and C6H12O6, I think that is glucose, right? Is that glucose? Yeah. Yes. तो Yes. ये दोनों में हाइड्रोजन तो है, लेकिन that is not ionizable, or that does not dissociate, because it is only in the form of molecules. They are just molecules, और ये मॉलिक्यूल नॉन पोलर है, तो इसमें डिसोसिएशन होने का कोई चांस नहीं. दैट्स वाई दे डू नॉट furnish hydronium ions, and that's why they do not show any acidic character. अच्छा, ये बेस और अल्कली में क्या फ़र्क है, कोई बता सकता है? बेस और अल्कली, एनीवन? यस, सिद्धि. Sir, alkaline are soluble in water and bases are not soluble. Okay, so they both show basic character. Do they both show basic character? Yeah. So both are bases basically, but alkalis are water soluble bases, right? So some of the metallic hydroxides and oxides are alkalis because they are water soluble, and some are not, so they are just bases. Acha, in our context of this chapter, whatever chemical reactions we are holding, or whatever properties we are studying, are we studying in context of bases or alkalis? Bases. Alkali. Alkalis only. ठीक है, क्योंकि हम सिर्फ आल्कली के साथ एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं. आल्कलीज के कैरेक्टरिस्टिक्स को हम लोग स्टडी करके बेसिस के कैरेक्टरिस्टिक्स एस्टैब्लिश करते हैं. वी कैन नॉट स्टडी बेसिस बिकॉज बेसिस आर नॉट वाटर सोल्यूबल. रिमेंबर, तुम्हारे केमिस्ट्री में सबसे इम्पॉर्टेंट जो फॉर्म है किसी भी कंपाउंड का, दैट इज़ अ सोल्यूशन. रिमेंबर, सोल्यूशन.
जितने केमिकल रिएक्शंस होते हैं ना, दे आर ऑलवेज इन सोल्यूशन फॉर्म. सो सोल्यूशन बनने के लिए क्या ज़रूरी है, व्हाट इज़ नेसेसरी फॉर सोल्यूशन, दैट कोई भी चीज़ सोल्यूबल हो. और सोल्यूबल तो बेसिस नहीं होते सारे, सिर्फ अल्कलीज होते हैं. दैट्स वाई ऑल द एग्जाम्पल्स विच यू हैव सीन, ऑल द प्रॉपर्टीज विच यू हैव सीन, दे आर पर्टेनिंग टू द अल्कलीज, नॉट द बेसिस. आगे भी तुम जब भी देखोगे तो अल्कलीज के ऊपर ही तुम काम करने वाले हो, नॉट द बेसिस जनरली. अच्छा, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है यार, बिकॉज एवरी टाइम आई थिंक आई सी इट सम और द अदर पेपर, दे ऑलवेज हैव दिस क्वेश्चन. इज PbO2 अ बेस और नॉट? कमेंट. हु कैन आंसर दिस? PbO2 a base or not? ओके, वेरी गुड. दो तीन लोग के पास है आंसर. यस, Amarin. It is not a base because it also produces chlorine in the reaction. Which reaction with whom? So with HCl. metallic oxide. Tell me, how do you test whether a substance is basic or not? So with litmus paper. Okay, so how do you comment whether PbO2 is a base or not? What about what are you talking about chlorine and all? I don't understand. So because with salt, it also produces an extra um, With salt? element. With which salt? What are you talking about? Okay, I would like to show you the reaction. Might be here somewhere. I got it. You see this one? Who knows what is neutralization reaction? Only Siddhi knows. Niyati? Yeah, tell me. What is neutralization reaction? So when an acid and a base react together to form salt and water. Only. When acids react with base, they form salt and water only. राइट. न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बहुत ही फेमस, बहुत ही कॉमन डेफिनेशन है, सबको पता होनी चाहिए, खास करके ये चैप्टर के बाद. व्हेन अ acid and a base react, they form salt and water only. If they form salt and water only, तो PbO2 जो एक मेटालिक ऑक्साइड है, जो टिपिकली एक बेस होना चाहिए, उसको हम HCl जो एक एसिड है उसके साथ जब रिएक्ट करते हैं तो इट शुड फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर ओनली. अच्छा, सॉल्ट तो बन रहा है PbCl2, वाटर भी बन रहा है, लेकिन साथ में क्लोरीन भी बन रहा है. Amarin, समझ में आया हाउ टू आंसर दिस? When you react PbO2, which is a metallic oxide, which should typically be a base or an alkali, with an acid, it forms salt, water as well as chlorine gas, and hence we can say that lead oxide is not a base. Yet it is a metallic oxide, but it is not a base, since it does not produce only salt and water when it reacts with acid. ठीक है, so this is the reason.
और ये कहीं ना कहीं क्वेश्चन बना के वो लोग डाल देते हैं। तो ऐसे कोने कोने में, इस बुक के कोने कोने में ऐसे छोटे 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 इन्फॉर्मेशन छुपे हुए हैं। इफ़ यू आर नॉट, like if you don't understand something, or if you just ignore something which is written in one small sentence in a corner, then you will lose one precious mark. यही प्रॉब्लम है केमिस्ट्री का, सबसे बड़ा प्रॉब्लम, बिकॉज हर कोने में इंफॉर्मेशन है एंड वी टेंड टू इग्नोर सम स्मॉल इंफॉर्मेशन एंड वी टेंड टू लूज मार्क्स. ओके, लेट्स टॉक अबाउट द पीएच वैल्यू. क्या होता है ये पीएच? व्हाट इज पीएच? एनीवन? It Yeah. shows that an acid is basic or acid or neutral. When, क्या बोल रहा है? If a solution is, A solution is acid, a basic, or a neutral. and what else? It So also how shows, much acidic or basic the substance is? yeah, it also shows the strength of acidic or basic character of a substance. How strong or weak acid is a substance, or how strong or weak base is one given substance. ठीक है, तो ये सिर्फ एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल सब्सटेंस के बीच में डिफ्रेंशिएट नहीं करता है, लेकिन उनकी स्ट्रेंथ भी बताता है. ठीक है, सो इसके पीछे एक पूरा साइंस है पीएच के पीछे. पीएच का फुल फॉर्म मैंने बताया था, किसी को याद है? Power of hydrogen. P means potens in German, meaning power. So pH means power of hydrogen. ठीक है, एक डैनिश बायोकेमिस्ट ने ये pH स्केल बनाया था, which represents the concentration of hydronium ions in a given aqueous solution. सिर्फ वो concentration of hydronium ions को लेके वो pH जज करता है. अगर concentration of hydronium ions ज़्यादा है तो pH कम हो जाएगा, और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयंस अगर कम है तो पीएच बढ़ जाएगा. सो पीएच रेंजेस फ्रॉम 0 to 14, 0 बीइंग मोस्ट एसिडिक, 14 बीइंग मोस्ट बेसिक एंड 7 बीइंग न्यूट्रल. 7 से 0 की तरफ जाओगे तो एसिडिक कैरेक्टर बढ़ता जाएगा, एंड 7 से 14 की तरफ बेसिक या अल्कलाइन नेचर बढ़ता जाएगा. ये जो लॉगरिथम में जो है, ये सब कुछ याद रखने की ज़रूरत नहीं है, इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट. तो ये पीएच स्केल जो डिवाइस किया है, उसको यूज़ करने के लिए वी नीड सम टूल, राइट? वी नीड सम केमिकल. तो ये जो केमिकल है इसको बोलते हैं यूनिवर्सल इंडिकेटर. एंड यूनिवर्सल इंडिकेटर इज अ मिक्सचर ऑफ इंडिकेटर डाइज दैट गिव्स अ स्पेक्ट्रम ऑफ कलर्स डिपेंडिंग ऑन हाउ एसिडिक और अल्कलाइन अ सॉल्यूशन इज. स्पेक्ट्रम ऑफ कलर्स. तो इफ यू सी द कलर्स ओवर हियर, from red to violet, it has all different colors on a scale, on a strip, which will be provided to you in this kit, and they will have different papers. इसको हम लोग बोलते हैं यूनिवर्सल इंडिकेटर पेपर स्ट्रिप्स. वो स्ट्रिप्स को तुम्हें डिप करना है तुम्हारे गिवन सोल्यूशन में, एंड इट विल शो वन ऑफ दीज कलर्स. इट कैन शो रेड और पिंक और येलो और ग्रीन और ब्लू और इंडिगो और वायलेट, एंड दैट कलर which is corresponding to the given number will decide the pH of your solution. तो तुम्हें तुरंत पता चल जाएगा कि ये बेसिक है, एसिडिक है, या फिर न्यूट्रल है, या कितना ज़्यादा एसिडिक है या कितना कम बेसिक है, जो भी स्ट्रेंथ के साथ. और फिर कुछ डेली लाइफ में इम्पोर्टेंस भी बताइए पीएच की. एग्रीकल्चर में, मेडिसिन में, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में, हमारे ब्लड रिपोर्ट में तक पीएच होता है. हमारे यूरिन टेस्ट में भी पीएच होता है, पीएच का टेस्ट करते हैं. टूथ डीके पीएच की वजह से होता है. जब पीएच गिर जाता है, एसिडिक हो जाता है माउथ, इसलिए हम लोग टूथपेस्ट यूज़ करते हैं, बिकॉज दैट इज़ अ बेस. ठीक है, या ओके. Any other doubt? Because Bhargav, so many doubts you didn't ask anyone. Krishabh, you also have left some questions.
Do you have any doubts? Okay. ठीक है. Now listen. The next part, acids or bases तो हो गया यहाँ पे, and I feel that you all have acquired some level of knowledge uh, from these two parts, and I'm quite okay with whatever you have learned up to now. But ये जो लास्ट पार्ट है चैप्टर का, दैट इज़ आई कैन से वेरी क्रूशियल. बहुत ही बड़ा पार्ट है, बहुत ही डिफ़िकल्ट भी हो सकता है, बिकॉज बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है. अगेन सो मेनी क्वेश्चंस कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम दिस पार्ट. इसके कोने कोने में इतनी इन्फॉर्मेशन भरी हुई है कि यू हैव टू गो थ्रू इट वेरी मेटिक्यूलसली, और एक एक इन्फॉर्मेशन को तुम्हें नोट डाउन करना पड़ेगा. सो सॉल्ट को प्लीज़ लाइटली मत लेना. एसिड और बेसिस ठीक है, थोड़ा 19-20 हो गया तुम्हारा, कोई प्रॉब्लम नहीं है. बट सॉल्ट इज़ वन टॉपिक वेयर यू कैन लूज मार्क्स ईजिली. सो व्हाट आई वांट इज़ दैट सॉल्ट के ऊपर थोड़ा एक्स्ट्रा अटेंशन दे दो. ठीक है, मैं तुम्हें उसका एक प्रिव्यू दे देता हूँ. व्हाट इज़ सॉल्ट, व्हाट आर यू गोइंग टू लर्न इन सॉल्ट, एंड व्हाट आर द इम्पॉर्टेंट थिंग्स वेयर यू टू पे अटेंशन. ठीक है, तो पहले तो ये समझो कि सॉल्ट आया कहाँ से. तो सॉल्ट के जो पेरेंट्स हैं, मम्मी पापा हैं, वो है एसिड और बेस. एसिड और बेस ने बनाया सॉल्ट. विदाउट एसिड एंड विदाउट बेस सॉल्ट कैन नॉट बी फॉर्म. हमेशा याद रखना कि सॉल्ट में, एनी सॉल्ट हैज़ गॉट टू parts, two elements, two parts you can say. One metallic ion and the other is a non-metallic ion. एग्जाम्पल अगर एक सॉल्ट का हम लोग ले लेंगे, NaCl. मेटालिक पार्ट is Na plus, non-metallic part Cl minus. कोई भी सॉल्ट ले लो. लेट्स टेक कॉपर कार्बोनेट, CuCO3, मेटालिक पार्ट Cu2 plus, non-metallic part CO3 2 minus. ठीक है, किसी भी सॉल्ट में तुम हमेशा ये दोनों चीज़ें देखोगे. अब नोट करने वाली बात यह है कि जो मेटालिक आयन है, इट इज गिवन टू द सॉल्ट बाय अ बेस और एन alkali. बेस और alkali आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस मेटालिक आयन विच इज पार्ट ऑफ अ सॉल्ट. और ये जो नॉन मेटालिक आयन, आई एम सॉरी, ये जो नॉन मेटालिक आयन है, ये कहाँ से मिलता है? सो दिस कम्स फ्रॉम, जस्ट अ मोमेंट, yes, so this non-metallic ion, it comes from the acid. And that is how a salt is made. Simple example मैं तुम्हें देता हूँ यहाँ पे. NaOH plus HCl, it gives, of course ये एक alkali है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और ये एक एसिड है. तो ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगा और
सॉल्ट एंड वाटर बनेगा, ओनली सॉल्ट एंड वाटर ओनली, ठीक है। अब सॉल्ट में मेटालिक आयन कहाँ से आएगा? इट कम्स फ्रॉम द अल्कली और द बेस Na। नॉन मेटालिक आयन कहाँ से आएगा? इट कम्स फ्रॉम द एसिड Cl प्लस बचा क्या? H एंड OH। H एंड OH ये दोनों मिलके क्या बना देंगे? H2O। So this is what happens in neutralization reaction, and this is how salts are formed. Mostly all the salts you will see such simple reaction which is responsible for their formation for all the salts, ठीक है। सो पहले तो सॉल्ट का हमने ओरिजिन समझे, आया कहाँ से सॉल्ट, ये मैंने तुम्हें बताया। So you will find different methods of formation of salts in this particular part. Then they have different definitions. मैंने पहले एक definition जो अभी बताया, ionic definition भी है उसकी, classification of salts दिए, normal, acid, basic, double, mixed, complex, ये सब अलग अलग टाइप के salts हैं, जिसमें डबल मिक्स्ड और कॉम्प्लेक्स ये सारे तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, बट नॉलेज तुम्हें होना चाहिए इनके बारे में, क्योंकि ऐसे सॉल्ट्स भी होते हैं, डबल सॉल्ट्स भी होते हैं, मिक्स्ड सॉल्ट्स भी होते हैं, ठीक है। what you see in your day to day life or what you hear about salts are normal salts generally, okay, but then there are beyond normal salts also there are other salts, इसके बारे में दिया है। then there are general properties of salts. salts एक electrovalent compound होता है कोई भी salt, because वो एक non metallic और metallic ion से बना है, which are basically bonded by electrovalent bonds, ionic bonds. so हर salt ionic compound होता है। उसके बाद solubility of salts के बारे में बात की है, तो हर एक salt अलग अलग solubility दिखाता है, कोई highly soluble होता है, कोई sparingly soluble होता है, so सारे salt soluble नहीं होते हैं। तो ये ग्राफ मैंने एक्सप्लेन किया है वीडियो में, कौन सा सॉल्ट कितना सोल्यूबल है कितने टेम्परेचर पे, वो एक्सप्लेन किया है। देन देर इज दिस टेबल, दिस इज लाइक दिस टेबल आई कंसिडर टू बी द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टेबल आई थिंक इन योर बुक, इन द होल सिलेबस ऑफ क्लास 10 केमिस्ट्री। दिस टेबल 3.1 तुम्हारे बुक में है क्या ये टेबल? अगर है तो वहाँ पे ऐसे 2-3 स्टार बना दो, बिकॉज ये तुम्हें बचाएगा जब तुम सॉल्ट का प्रिपरेशन करोगे तब। ये टेबल का तो रट्टा मार लेना, क्योंकि ये टेबल ऐसी इंफॉर्मेशन तुम्हें दे रहा है कि आगे आने वाले सारे क्वेश्चंस इसके ऊपर बेस्ड है। इस टेबल में क्या बोला है पता है? सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्ट्स के बारे में वो लोग ने पूरा एक चार्ट बना दिया है। ऑल द कंपाउंड्स ऑफ अमोनियम, सोडियम, पोटेशियम आर सोल्यूबल इन वाटर। मतलब अमोनियम सॉल्ट्स, सोडियम सॉल्ट्स एंड पोटेशियम सॉल्ट्स ये सारे वाटर सोल्यूबल होते हैं। तो उनके प्रिपरेशन का जो मेथड है दैट इज अ स्पेसिफिक मेथड बिकॉज ऑफ दिस सोल्यूबिलिटी। ऑल नाइट्रेट्स एंड नाइट्राइट्स आर सोल्यूबल, नो एक्सेप्शंस। ऑल क्लोराइड्स, ब्रोमाइड्स, आयोडाइड्स आर सोल्यूबल, बट देर आर एक्सेप्शंस। एक्सेप्शन क्या है? मर्क्यूरिक क्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड, लेड क्लोराइड, ये तीनों सोल्यूबल नहीं है। लेड क्लोराइड हॉट वाटर में सोल्यूबल है, कोल्ड वाटर में सोल्यूबल नहीं है। ये तुम्हें लर्न करना है, एक्सेप्शन क्या है और कौन से कंपाउंड सोल्यूबल है या कौन से नहीं है। ऑल सल्फेट्स आर सोल्यूबल एक्सेप्ट कैल्शियम, लेड एंड barium sulfate, they are not soluble. All carbonates, sulfides, sulfides, phosphates are insoluble they are saying। कार्बोनेट आया मतलब तुम समझ लो इनसोल्यूबल है ये। लेकिन इसमें एक्सेप्शन है कि अमोनियम, सोडियम और पोटेशियम के कार्बोनेट सोल्यूबल होते हैं, क्योंकि अमोनियम, सोडियम और पोटेशियम के सारे कंपाउंड सोल्यूबल होते हैं, ठीक है। बट उनके जो दूसरे जो कार्बोनेट्स, सल्फाइड्स या फॉस्फेट्स है, दे आर ऑलवेज इनसोल्यूबल, ठीक है। सो दिस टेबल इज एक्चुअली गोइंग टू सेव योर लाइफ व्हेन यू आर स्ट्रगलिंग विद रिमेंबरिंग हाउ सॉल्ट्स आर प्रिपेयर्ड। सॉल्ट्स का प्रिपरेशन ही हमारा मेन टॉपिक है इस चैप्टर का, राइट। एंड yeah, there is one more important
टॉपिक जिसको मुझे चाहिए कि तुम थोड़ा सा और अटेंशन दे दो, हाइड्रोलिसिस। इसके ऊपर कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है, हाइड्रोलिसिस। तो हाइड्रोलिसिस क्या है? It is a phenomenon due to which salt formed by weak acid and a strong base, or strong acid and a weak base reacts with water to give an acidic or an alkaline solution. जब एक strong acid और एक weak base react करता है, उसका प्रोडक्ट कैसा होगा? बताओ। एक स्ट्रॉन्ग एसिड जब एक वीक बेस के साथ रिएक्ट करता है, तो बेस और एसिड मिलके तो सॉल्ट बनाएंगे ना, लेकिन ये जो सॉल्ट होगा दैट विल बी एसिडिक सॉल्ट, क्योंकि उसके पापा के जीन्स ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि नहीं? समझ गए? मदर और फादर दोनों में से जो स्ट्रॉन्गर जीन्स होता है वैसा ही बेबी क्रिएट होता है, वैसा ही दिखने वाला। तो जिसके जीन्स स्ट्रॉन्गर है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स दिखेंगे तुम्हें ऑफस्प्रिंग में। ऑफस्प्रिंग यहाँ पे सॉल्ट है अपना, ठीक है? तो सॉल्ट में किसके कैरेक्टर दिखेंगे? स्ट्रॉन्गर पेरेंट के। स्ट्रॉन्गर पेरेंट कौन है? एसिड, ठीक है? तो स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस दे फॉर्म एसिडिक सॉल्ट। जैसे ही एसिडिक सॉल्ट को पानी में डालोगे तो एसिडिक सोल्यूशन बनाएगा वो। तो एसिडिक सॉल्ट ये कोई नॉर्मल सीधा साधा सॉल्ट नहीं है, इसको पानी में डालोगे एसिडिक कैरेक्टर शो करेगा, और जैसे ही उसमें ब्लू लिटमस डालो रेड हो जाएगा। सॉल्ट है ये, लेकिन एसिडिक कैरेक्टर वाला, एंड दैट इज बिकॉज ऑफ दिस हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस से ही ये होता है। What is hydrolysis? It is a phenomenon due to which salt formed by weak acid and a strong base, or strong acid and a weak base reacts with water to give an acidic or an alkaline solution. इसके ऊपर भी मैंने बताया। So if you are thinking कि सर ये आप पढ़ा रहे हो या बता रहे हो, मैं तुम्हें बता रहा हूँ because I am again going to give you the video, the last part, and the last exercise will be your homework, which we are going to do on Tuesday. Tuesday we will finish this chapter with discussion, ठीक है? अभी अपने को, मैंने पहले ही बोला था, we don't have time to get stuck on one topic. I want to focus on your weaknesses, not all the details, ठीक है? सो मैं जो जो इम्पोर्टेंट है, मुझे लगता है यहाँ पे तुम फंसोगे, हाइड्रोलिसिस तुम्हें फंसाएगा, तो मैं तुम्हें एक्स्ट्रा बता रहा हूँ, पहले ही कॉशियस कर रहा हूँ कि इसमें थोड़ा ध्यान रखना। यस नहीं आती? सर हमारी बुक में 3B थोड़ा पार्ट बीच में से कट किया है सॉल्ट्स के पार्ट से, और 3B के पार्ट किया है कि नॉट इंसुलेटेड, और उसमें आता है सॉल्युबल जो वो है हाइड्रोलिसिस और हाइड्रोलिसिस सब नॉट इंसुलेटेड। Okay, so they have excluded it. यस, Good, very nice. ड्राइंग एजेंट, डिहाइड्रेशन एजेंट, एफ्लोरेसेंस, That is also excluded. यस सर। मतलब जो जो अच्छे अच्छे पार्ट थे जिसमें थोड़ा मुझे मज़ा आता था पढ़ाने के लिए, वही हटा दिया। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। मतलब ये चैप्टर पूरा चिंदी बना दिया वो लोग ने, कुछ भी नहीं है इसमें। कोई बात नहीं, अभी भी है कुछ तो कंटेंट है जिसके ऊपर मैं बात कर सकता हूँ। प्रिपरेशन ऑफ सोल्यूबल सॉल्ट्स। मुझे बताओ, सोल्यूबल सॉल्ट्स याद है तुम्हें? कौन कौन से सॉल्ट सोल्यूबल होता है? ऑल, अमोनियम, पोटेशियम एंड सोडियम, है ना? अमोनियम, पोटेशियम, सोडियम सॉल्ट सारे सोल्यूबल होते हैं। और कौन से सोल्यूबल होते हैं? देखो यहीं बोला है, नाइट्रेट्स एंड नाइट्राइड्स आर ऑलवेज सोल्यूबल। क्लोराइड्स, ब्रोमाइड्स, आयोडाइड्स आर ऑलवेज सोल्यूबल एक्सेप्शंस के साथ, एंड सल्फेट्स आर ऑल्सो सोल्यूबल। तो तुम देखोगे यहाँ पे प्रिपरेशन ऑफ सोल्यूबल सॉल्ट किया है, और कैसे किया है? देखो यहाँ पे कौन सा सॉल्ट प्रिपेयर कर रहे हैं वो लोग? सोडियम क्लोराइड। विल इट बी सोल्यूबल? ऑफ कोर्स इट इज सोल्यूबल। फिर आयन क्लोराइड, यहाँ पे देखो ऑल क्लोराइड्स आर सोल्यूबल, आयन क्लोराइड तो है ही नहीं एक्सेप्शन में, मतलब सोल्यूबल होगा, ठीक है? सो तुम अगर देखोगे ऑल दिस इंफॉर्मेशन विच दे हैव गिवन ओवर हियर, इट मैचेस विद दिस टेबल। Okay, so you have to go through all these details I have explained in detail in the video, and take the notes of
don't take the notes, just keep it in mind because questions you have to solve based on them. Then preparation of insoluble salt, देखो lead sulfide आ गया, iron sulfide आ गया, sulfides are not soluble, so उनका प्रिपरेशन का मेथड ही अलग है. जो soluble salts है ना, they are generally prepared by सिंपल डिस्प्लेसमेंट, और डायरेक्ट कॉम्बिनेशन के तो बहुत ही रेयर एग्जांपल्स है. सिंपल डिस्प्लेसमेंट, डीकम्पोजिशन, डबल डीकम्पोजिशन, न्यूट्रलाइजेशन, ये सारे जो रिएक्शंस है उससे हम लोग सोल्यूबल सॉल्ट्स बनाते हैं. इनसोल्यूबल सॉल्ट में यू विल सी डिफरेंट मेथड्स. एक मेथड है जो बहुत इंपॉर्टेंट है इनसोल्यूबल सॉल्ट के प्रिपरेशन के लिए, दैट इज प्रेसिपिटेशन रिएक्शन. डू यू नो व्हाट इज अ प्रेसिपिटेशन रिएक्शन? प्रेसिपिटेट, मैं कल 9th को पढ़ा रहा था प्रेसिपिटेशन, तो बेचारे वो भी स्ट्रगल कर रहे थे. दिखाता हूँ तुमको, शायद मेरे पास होगा यहाँ पे, उनको समझाया था मैंने. Do you see this picture? This is known as a precipitate. दो क्लियर ट्रांसपेरेंट लिक्विड्स को जनरली जब हम मिक्स करते हैं तो अचानक उनमें एक इनसोल्यूबल कंपोनेंट इमर्ज होता है, और कभी कभी ऐसा पूरे सोल्यूशन में यू कैन से it gets dispersed in the whole solution, or sometime it gets settled at the bottom of the test tube. इसको बोलते हैं precipitate. This is precipitate. ठीक है, इसको याद रखना. So precipitation reactions है generally we form insoluble salts because they are insoluble ना, so that's why they get precipitated. इसमें भी बहुत सारे examples हैं which you have to remember. And comes the most important part, laboratory preparation of some salts, normal and acid salts. अब यहाँ पे एक एक सॉल्ट को लेके वो लोग ने उसकी कुंडली निकाली है कि आयन क्लोराइड कैसे बनेगा, क्या मेथड है, क्या कंडीशंस होनी चाहिए, नोट कुछ एक्स्ट्रा चीज़ तुम्हें याद रखनी है. कॉपर सल्फेट कैसे बनता है, स्टेप वाइज बताया है, एवरीथिंग आई हैव एक्सप्लेन्ड. जिंक सल्फेट कैसे बनता है, आयन सल्फेट कैसे बनता है, ठीक है. उसके बाद लेड क्लोराइड, कैल्शियम कार्बोनेट, सो मेनी लेबोरेटरी प्रिपरेशन यू विल सी हियर, ठीक है. एंड देयर योर चैप्टर एंड्स. फाइनल ये आई थिंक नहीं है, दिस पार्ट इज नॉट देयर राइट, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन नॉट देयर. या कूल, तो ये प्लीज़ इग्नोर करना अगर ये है तो. बट या दैट इज़ योर नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर विच इज़ अबाउट सॉल्ट. तुम्हारी बुक में उसका इंटेक्स्ट है या फाइनल एक्सरसाइज है? 3C 3B. It is, there is no in-text, right? Okay. So your homework, if you have the book, is 3B. If you don't have the book, I have already given you this. So your homework is this in-text of part B or exercise 3B, whichever is there in your textbook. ठीक है? So this is your homework. एंड टेक योर टाइम. ऐसा मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम जल्दबाजी में करो. यू कैन गिव इट अप टू नेक्स्ट वीकेंड. आई एम गिविंग यू 1 week एंड दैट इज़ अ फेयर अमाउंट ऑफ टाइम फॉर सबमिशन ऑफ दिस. आई कैन नॉट गिव यू मोर टाइम देन दैट, ठीक है. बट आराम से करना है एक एक चीज़, क्योंकि ये बहुत ही क्रेजी पार्ट है यहाँ पे. मतलब आई फील दैट यू नो मैनी स्टूडेंट्स दे गिव अप ऑन केमिस्ट्री आफ्टर डूइंग दिस. तो दिस इज नोन एज एनालिटिकल केमिस्ट्री. हमारे पास तो पूरा चैप्टर है एनालिटिकल केमिस्ट्री का, इसके बाद वाला चैप्टर विच वी आर गोइंग टू डू. बट दिस पार्ट इज एक्चुअली गोइंग टू टेस्ट योर केमिस्ट्री स्किल्स, ठीक है. ओके गाइज, सो अब हम लोग विल स्विच टू मैथ्स, और एक टॉपिक हम मैथ्स का करने वाले हैं, दैट इज सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन AP. ठीक है, तो मैं ये रिकॉर्डिंग स्टॉप कर रहा हूँ.